چند ایک باتیں ہیں، چند ایک نکتے ہیں پہلے کلمے کے حوالے سے. ہم ان چند نکتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے. ہم ہر سال گڈ فرائیڈے کے روز ان 7 صلیبی کلمات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج لفظوں پر غور کیجئے گا. لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 34ویں آیت. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنیں اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. اس ایک کلمے کے اندر 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات پروفیسی. اس ایک کلمے میں نبوت کی تکمیل ہوئی. دوسری بات، اس ایک کلمے میں ہمیں معافی نظر آتی ہے. تیسری بات، اس ایک کلمے میں ہمیں سیکریفائس نظر آتا ہے. مطلب اس ایک کلمے کے اندر پروفیسی، فارگیونیس اور سیکریفائس. اس ایک کلمے کے اندر نبوت، معافی اور قربانی، یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلی بات پروفیسی. خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی، خداوند یسوع مسیح کی باتیں، خداوند یسوع مسیح کے کام، اس کا طرز زندگی، یہ ساری وہ باتیں ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی بابت آسمانی باپ نے نبیوں کی معرفت کئی سالوں سے وقت کے حساب سے طرح بطرح لوگوں تک یہ میسیجز، یہ پیغامات پہنچائے کہ ایک نجات دہندہ، ایک مسیحا آئے گا. ارے اس کے کام، اس کی باتیں، اس کے کام، اس کا طور طریقہ وہ عجیب ہوگا، وہ لاجواب ہوگا، وہ منفرد ہوگا. ہی ول بی یونیک پرسن. اور یہاں پر جب ہم پہلے کلمے پہ غور کرتے ہیں، یہ پہلا کلمہ بھی ہمیں نبوت کی تکمیل ملتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی سے کئی 100 سال پہلے یسایہ نبی کی معرفت خداوند نے کلام کر دیا. آپ دیکھیے یسایہ 53 باب کی 12ویں آیت. وہ گنہگاروں کے ساتھ گنا گیا. ارے اس نے بہتوں کے گناہ اپنے اوپر لے لیے. وہ خطا کاروں کے لیے شفاعت کرتا ہے. اور جب وہ یہاں صلیب پر خطا کاروں، گناہ گاروں کے لیے شفاعت کرتا تو یسایہ نبی کی معرفت کیا گیا کلام اور وہ نبوت، اس نبوت کی تکمیل ہمیں یہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی جب وہ کہتا ہے، اے باپ تو ان کو معاف کر. دوسری بات، معافی. ان لفظوں پہ غور کیجئے. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اے باپ تو ان کو معاف کر. اپنی زمینی زندگی میں تو خداوند یسوع مسیح آپ گناہ معاف کرتے آئے ہیں، تے ہن کیوں لوڑ پہ گئی کہ یہ کہا جائے کہ اے باپ تو ان کو معاف کر. خداوند یسوع مسیح خود اب کیوں معاف نہیں کر رہے؟ واٹ از دا پرپس اینڈ واٹ از دا ریزن؟ ارے یہ تو وہ ذات ہے کہ جب شمع ان کے گھر پہ تھے تو ایک بد چلن عورت آئی. اس نے رو رو کے آنسوؤں سے اس کے پاؤں پہنچے تو خداوند یسوع مسیح کا، جا بیٹے پھر گناہ نہ کرنا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے. ارے یہ تو وہ ذات ہے جس کا دعویٰ یہ تھا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. لیکن آج جب ہم اس کو صلیب پر دیکھتے ہیں، یہ خود گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ یہ کہہ رہا ہے، اے باپ تو ان کو معاف کر. اس کی ایک وجہ، جناب مسیح کا دعویٰ یہ تھا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. لیکن آج جب ہم کلوری کے پہاڑ پر نگاہ کرتے ہیں تو آج ابن آدم ہمیں زمین پر نہیں بلکہ آسمان اور زمین کے بیچوں بیچ لٹکا دکھائی دیتا ہے. جب وہ آسمان اور زمین کے بیچوں بیچ لٹکا ہے تو اب وہ بلند آواز سے کہتا ہے، اب آپ تو ان کو معاف کر. دوسری بات، کیوں جناب مسیح اب خود گناہ نہیں معاف کر رہے؟ یہ وہ ذات ہے جو کامل خدا اور کامل انسان ہے، لیکن صلیب پر اس کی ذات الہی نہیں بلکہ صلیب پر یہ ذات بشریت ہے. اور یہ وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کے گناہ اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر لٹکا ہے. اور وہ جو خود گناہ کے نیچے ہو وہ کسی دوسرے گنہگار کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. ہاں مگر جناب مسیح نے اس پہلے کلمے سے ہمیں ایک نمونہ دے دیا کہ جب ہم ایسی حالت میں ہو کہ کسی کو معاف نہ کر سکیں
खुदावंद के हुजूर में झुककर माफी के लिए शिफात जरूर की जा सकती है। हालेलुया। अरे यहाँ पर जब हम जनाब मसीह पे गौर करते हैं, उसकी जात पर निगाह करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं बाप तू इनको माफ कर। तीसरी बात सैक्रिफाइस, इसी कलमे का आखिरी हिस्सा, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, मतलब ऐसा गुनाह इनसे हो गया जिससे ये वाकिफ नहीं, ना दानिस्ता तौर पर किया गया गुनाह, ना दानिस्ता तौर पर की गई खता, और ऐसी खता जिससे ये वाकिफ नहीं, अब आप तो इनको माफ कर, ये जानते नहीं, और ऐसी खता जिससे खताकार वाकिफ ना हो, जिससे गुनाहकार आशना ना हो। एहबार की किताब, गिनती की किताब आप खोल लीजिए, खुदावंद ने हुक्म ये दिया था अगर जमात से कोई ऐसी खता सरजद हो जाए जिससे ये जमात ना आशना हो, ना दानिस्ता तौर पर किया गया गुनाह, अरे उस सूरत में काहन के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो एक बर्रा ले, उसके ऊपर गुनाह को लाद दिया जाए और फिर उस बर्रे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए कुर्बान कर दिया जाए। सोख्तनी, अरे सोख्तनी फारसी जुबान का लफ्ज सोख्तन से निकला है। सोख्तन का मतलब है भस्म कर देना, जला देना, पूरे तौर से खत्म कर देना। तो इसका मतलब कि अगर जमात से कोई ऐसी खता सरजद हो जाए जिससे जमात वाकिफ ना हो, लेकिन अगर पता चल जाए कि जो काम किया है वो गलत है, तो फिर काहन के ऊपर जिम्मेदारी के बर्रे के ऊपर गुनाह को ला दे और उसको सोख्तनी कुर्बानी के लिए कुर्बान कर दिया जाए। और यहाँ पर जब जनाब मसीह सलीब पर लटके अपने लबे मुबारक से ये कहते हैं ऐ बाप तू इनको माफ कर, ये नहीं जानते, तो ये वही काम है जो हैकल के अंदर काहन किया करता था, क्योंकि जब काहन कुर्बानी गुजराता था ऐसी खता के लिए जिससे जमात वाकिफ ना हो, तो कुर्बानी करते वक्त काहन की प्रेयर ये होती थी कि ऐ बाप तू इनको माफ कर, ये उस खुदा के लिए माफी है जिससे ये जमात नाशना है। और यहाँ पर जनाब मसीह बतौर काहन कुर्बानी के लिए अपना ही बदन खुदावंद की हुजूरी में पेश करके दुआ ये कर रहे हैं बतौर काहन है बाप तो इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। अरे यहाँ पर इस काहन ने अपने आप को कुर्बानी के तौर पर, अपना ही बदन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के सामने पेश किया और फिर वही दुआ की जो एक काहन करता है जमात के लिए, अब आप तो इनको माफ कर। यहाँ पर जमात के, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के सामने ये माफी किसी एक खास तबके, एक खास कौम के लिए नहीं है। जनाब मसीह के सामने यहाँ पर सरकारी अफसर भी है, जनाब मसीह के सामने यहाँ पर मजहबी लीडर भी है, जनाब मसीह के सामने यहाँ पे साहब रोजगार भी है, कारोबारी लोग भी हैं। ये दुआ हर एक शख्स, हर एक उम्र के ताल्लुक रखने वाले, हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले हर एक शख्स के लिए ये प्रेयर है, अब आप तो इनको माफ कर। अरे आज ये शिफात आपके लिए भी है, आपका ताल्लुक किसी भी तबके, किसी भी नस्ल, उम्र के किसी भी हिस्से से क्यों ना हो, दिस इज अ प्रेयर फॉर यू। आज भी आसमानी बाप के सामने मेरे लिए और आपके लिए शिफात करने वाला हमारा सरदार काहन मौजूद है, जो आज भी मुझे और आपको देखता, आज भी वो ये पुकार के कहता है ऐ बाप तो इनको माफ कर, ऐ बाप तो इनको माफ कर। अरे मुझे और आपको माफी की जरूरत है। अरे ये माफी, ये वो कुंजी है जो मुझे और आपको फिर बाप से मिला देती है। हालेलुया। अरे आज जब हम इन 7 सलीबी कलमात पर गौर करते हैं तो ये पहला कलमा हमें बड़ी तकवीयत देता और तसल्ली देता है, क्योंकि जब हम सलीब पर निगाह करते हैं तो ये सलीब हमें बताती है कि इस सलीब के पास आ जा, अरे क्योंकि तुझे माफी की जरूरत है, तुझे नजात की जरूरत है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब खड़े हो जाएंगे और खुदावंद की सताइश में गीत का अगला हिस्सा कोर्स गाएंगे।
तेरा खून प्यारा बन के भाग गया तारा, तेरा खून प्यारा बन के भाग गया तारा, होया साड़ा कफारा डके पाप हमारे, होया साड़ा कफारा डके पाप हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बच गए सारे। हालेलुया, तशरीफ रखें। बेशक हम सबको खुदा यीशु मसीह माफ़ करता है। उसने कहा है, ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। उसने हमारे गुनाहों की खातिर कोड़े खाए, उसने हमारे गुनाहों की खातिर जलील हुआ, वो हमारे गुनाहों की खातिर उस पर सियासत हुई, वो हमारे गुनाहों की खातिर उसने सलीबी मौत गवारा कर ली और अपनी मोहब्बत ज़ाहिर कर दी कि मैं दुनिया से बेपनाह प्यार करता हूँ। इसी तरह हम दूसरे कलमे की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम दूसरे कलमे की तरफ बढ़ें, मैं खादिम-ए-दीन से कहता हूँ कि उनके पास 7 मिनट हैं। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आप 7 मिनट में अपने कलमे को पेश करें। दूसरा कलमा निजात का कलमा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ वो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जानवर खुदा की खास बात। मैं दूसरे कलमे के लिए पास्टर बलबीर को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए और दूसरा कलमा पेश करें। सरब जय मसीह। दूसरा कलमा जो है प्रभु ने मैंने समा दिता बोलने की आग्ञा दी है। मैं 7 मिनटा का टाइम और प्रभु ने मैंने दिता, मैं कोशिश कराँगा कि 1 मिनट में घट ही लावा। सरबल हालेलुया, क्योंकि 7 मिनटा बहुत कुछ हो सकता। मैं और एक रिक्वेस्ट करदा कि मेरी हेल्प की जाए थोड़ी उर्दू दे विच। लूका दी अंजीर ਉਹਦੀ 23 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 39 ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ। लूका दी अंजीर। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। 39 23 31 39 फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उससे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसने सज़ा में गिरफ्तार है। हमारी सज़ा वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, क्या यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। सरबल हालेलुया। और ਇਹ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਲਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲਈ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਰਬਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੇ ਐਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲਈ, ਐਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲਈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਏ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲਈ, ਐਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਔਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਦਭੁਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਫਾਜ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਤੱਕਣੀਆਂ ਸਲੀਬ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿਸ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਬੋਲੋ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਵਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਓ,
ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਰਬਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਔਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਸਰਬਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ ਦੇਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। बेशक खुदा का बंदा कहता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदा की बादशाही नज़दीक है। हमें खुद पर, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या हम यीशु को इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम उसकी बादशाही के वारिस हो सकें? क्या हम खुदा से इतना प्यार करते हैं कि हम फिरदौस में जाने वाले बन सकें? उसने तो कहा है मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं हूँ तुम भी। इसी तरह हम प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गीत का अगला कोर्स गाएंगे। जिंद गोल गमावा क्यों ना गुन तेरे गावा, जिंद गोल गमावा तेरे पीछे पीछे जावा, देखा सुनी दे नजारे तेरे पीछे पीछे जावा, देखा सुनी दे नजारे कलवरी दे सहारे पापी बचे मेरे सारे। हालेलुया। अब हम तीसरे कलमे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा। यीशु ने अपनी माँ और उस शिगिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शिगिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शिगिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मैं तीसरे कलमे के लिए भाई लियाकत को दावत देता हूँ कि वो आएँ और खुदा का कलाम पेश करें। हालेलुया। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में अभी भाई ने तलावत की, आइए ज़रा थोड़ा कलाम को थोड़ा पीछे से तलावत करते हैं 25वीं आयत से। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। हालेलुया। अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से यीशु मसीह के उस तीसरे कलमे को देखेंगे जो यीशु जब मसलूब किए गए तो उस वक़्त तीसरा कलमा उन्होंने अपने मुंह से सादर किया, जिसमें ख़ास जो बात कही जाती है। इस कलमे को हम सब लोग जानते हैं और सदियों से हम लोग इस पर तहकीक कर चुके हैं, जिसको मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। यहाँ पर मोहब्बत के साथ ज़िम्मेदारी भी शो हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो वो अपने जिस्मानी बदन में थे और जिस्मानी होने के नाते उन्हें अपने अजीज़ व अक़रबा का ख्याल था, क्योंकि उससे पीछे देखें तो लिखा हुआ है कि उसकी माँ मौजूद थी वहाँ पर। और यीशु ने जब अपनी माँ को देखा तो बीइंग ह्यूमन इंसान होने के नाते यीशु चाहते थे कि अपनी माँ का ख्याल रखें और उनकी एब्सेंस में दुनियावी इस ज़मीनी ज़िंदगी जब उनकी यहाँ से वो रुखसत हो जाएं तो पीछे किसी ना किसी के हवाले अपनी माँ को करके जाएं। तो इस सीन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सलीब के पास एक शागिर्द भी दिखता है जो कि जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिससे यीशु मसीह प्यार करते थे। अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, आए औरत ये तेरा बेटा है।
اور शागिर्द से कहा ये तेरी माँ है, اور اسی وقت اسے اپنے گھر لے گیا۔ یہاں پر یسوع کی ایک اپنی ماں کے لیے دنیاوی لحاظ سے محبت شو ہو رہی ہے، اور ذمہ داری کس کو سونپی جا رہی ہے؟ شاگرد کو، جو کہ وہاں پر اویلیبل ہے۔ باقی بھی لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، کیونکہ اگر ہم وہاں پر دیکھتے ہیں جیسا بھائی نے بتایا کہ 3 کیٹیگری کے لوگ تھے، بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ میں بھی ڈیٹیل میں کبھی ہم نے دیکھا نہیں، لیکن میں بھی بہت سارے شاگرد بھی ہوں جو پیچھے کہیں چھپ کے کھڑے ہوں یا کچھ ایسا ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس اویلیبل شخص کو رسپانسبلٹی دی۔ ہاللیلویا! ایسا شاگرد جو موجود تھا، خدا نے اس کو ذمہ داری دی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کی، کیونکہ ماں سے بھی بہت پیار کرتے تھے اور شاگرد سے بھی، تو انہوں نے ایک نیا رشتہ قائم کیا۔ یہاں پر یہ خداوند کے نام کو جلال ملے کہ یسوع مسیح جب کہ ایسی حالت میں ہے، صلیب کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوگا، یقیناً باڈی کے اوپر اس ٹائم بہت زیادہ کرب فیل ہو رہا ہوگا۔ اس حالت میں یسوع مسیح نے اپنی خاندانی محبت جو ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ محبت وہ شو کی اور دکھایا کہ وہ کیسے تابع فرمان بچہ ہے، کیسے اس نے اپنی ماں کی ہمیشہ خدمت کی ہے، اور آخری لمحے تک جب تک وہ سوچ سکتا تھا اس نے اپنی ماں کی محبت کو شو کیا اور اپنے شاگرد کے حوالہ کیا، اور شاگرد کو بھی ذمہ داری دی کیونکہ شاگرد اویلیبل تھا۔ یہ دنیاوی طور پر جو دکھ رہا ہے۔ ایک اور سین ہے جس کو ہم اگر تھوڑا سا بھی دیکھتے ہیں تو مجھے روحانی طور پر بھی خداوند کی طرف سے کچھ نظر آتا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں جو عورت ہے، عورت کو تشبیہ دی گئی ہے قوم اسرائیل سے۔ مکاشفہ 12 باب میں دیکھتے ہیں، پاسٹر صاحب جانتے ہوں گے، حزقیل 16 باب میں بھی ہے کہ خدا جو ہے وہ عورت کو قوم اسرائیل سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو نئے عہد نامے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پالوس رسول مقدس وہ غلطیوں 4 باب میں 21 سے 31 آیت میں بھی عورت 2 عورتوں کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، نئے عہد اور پرانے عہد کے ساتھ، غلام اور آزاد نسل کو 2 عورتوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ کو۔ تو یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ قوم اسرائیل، اور آج وہ ہماری کلیسیا اس کو کلام کر رہا ہے۔ ہم سب سوچیں کہ ہم اس وقت صلیب کے سامنے کھڑے ہیں اور یسوع یہ تیسرا کلمہ مجھ سے اور آپ سے کلیسیا سے کرنا چاہ رہا ہے۔ اور کلیسیا میں دیکھیں تو جیسے میں نے 4 عورتوں کا ذکر کیا، 4 عورتیں وہاں پر موجود تھیں، تو یہ ڈفرنٹ کنڈیشنز ہیں جو کلیسیا کے اندر ہیں۔ ایک تو بہت ماں کا ریلیشن ہے، کلوز ترین ریلیشن ہے کلیسیا کا، دوسرا وہ جو رشتہ دار ہیں، اور تیسرا وہ جو کہ شاگردوں کی آگے وائف ہیں، اور چوتھا وہ جو کہ عورت جس کو شفا ملی ہے، مریم مگدلینی ہے۔ آج کے دن خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس صلیب کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہم دیکھیں، ہم جانچیں کہ ہم کون سی جگہ میں ہیں، ہم کلیسیا کے کون سے فرد ہیں، ہم کیسے یسوع کے الفاظ کو اپنے اوپر لیتے ہیں، کیونکہ یسوع آج کلیسیا سے کلام کرتا ہے۔ وہ صلیب پر آج ایسے ہی جیسے ہم اس کی یادگاری میں کر رہے ہیں، وہ صلیب پر ہے اور مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس شاگرد کی طرح جو کہ اویلیبل تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا جاتا ہے، ہمیں چرچ میں بہت دفعہ کسی نہ کسی رنگ میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کہا جاتا ہے تو ہم لوگ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے۔ آج خداوند یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے اویلیبل ریسورسز کو صلیب کے سامنے لے کے آنا ہے، تاکہ یسوع جب دیکھے تو مجھے یوں دیکھ کر کہے، لیاقت میں تمہیں چاہتا ہوں، تم میری ماں کو اپنی ماں بنا لو، تم اس کلیسیا کو اپنے گھر لے جاؤ۔ ہاللیلویا! تو آئیے عزیزو، ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کلام، اس صلیب کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتار لیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کریں، ہم اس روحانی مطلب کو جانیں
कि यीशु मुझ और आपसे कलाम कर रहा है। वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियां जिस लेवल पे भी हैं, अगर हम कलीसिया में हैं उस लेवल पर भी अपनी पूरी प्रिपरेशन रखें, और अगर हम किसी जगह पर काम कर रहे हैं, यानी कि अच्छी जगह पर जहाँ पे खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें अपने आप को अवेलेबल करना है, हमें अपने आप को वहाँ पर फराहम करना है। ये नहीं है कि हम पीछे छुपते रहें, झुकते रहें, हम डरते रहें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह को हम नजर आएं, और जब वो हमें कॉल करे, हमें बुलाए, तो हम यकीनन अवेलेबल हों। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का फाज़ हो। आमीन, हालेलुया। बेशक हम मसीह के अज़ा होते हुए हमें अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए, क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। इसी तरह हम परस्तश में बढ़ते हुए गीत का अगला कोर्स गाएंगे। तेरी कदर ओ जाने जेड़ा ज़ख्म पहचाने, तेरी कदर ओ जाने जेड़ा ज़ख्म पहचाने, लहू जिन्ना विचों वग के आया देस हमारे, लहू जिन्ना विचों वग के आया देस हमारे, गलबारी दे सहारे पापी बच गए सारे। हालेलुया, हालेलुया। चौथा कलमा कफारा का कलमा। और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं चौथे कलमे के लिए पास्टर अमजद को दावत दूंगा कि वो आएँ और चौथा कलमा पेश करें। आपकी भरपूर तालीम। सबसे पहले खुदा में यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम सही सलामत यहाँ पहुँचे, और मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के खादम फाज साहब का और पासे साहब का और भाई शहजाद का और यसर साहब का, जो खुदा के लोग हैं। इन्होंने मुझे दावत दी और मैं यहाँ आया। आज खुदा के खादमों ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया है, मैं बड़ा खुश हूँ। और यही चीज़ें जो होती हैं हमारे सीखने की होती हैं कि हम खुदा का ज़िंदा कलाम कैसे सीखें, कैसे हम किससे सीखें, और कैसे हमें खुदा के खादम कलाम सुनाएं और उस पर हम अमल करें। आज हम खुदाम के पाक कलाम से तलावत करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और 45 आयत से पढ़ेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फ़ौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखो तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चलाकर जान दे दी, और मुक़द्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं,
اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ پس صوبے دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بنچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سے برکت ہو۔ دیکھیں آج یہ بڑی بات ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے اور سورج جو ہے وہ بہت تیز دوپہر کو چمکتا ہے، تیز دھوپ لگتی ہے اور روشنی ہوتی ہے۔ اب یہ سورج جو ہے وہ بھی اس وقت اپنی روشنی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے، روشنی نہیں دے رہا۔ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، چاروں طرف کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اب دیکھیں اس اندھیرے کا مطلب کیا ہے؟ تاریکی۔ تاریکی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہوں کا اندھیرا تھا۔ کیا تھا؟ ہمارے گناہوں کا اندھیرا تھا۔ جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا پہلا باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، خدا کی نظر گناہ کو، بدی کو نہیں دیکھتی۔ خدا کی نظر بدی کو نہیں دیکھتی۔ پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت یہ جو ماجرا ہوا، جو خداوند یسوع المسیح پر، جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کفارہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کفارہ دیا ہے۔ ہم جو جتنے بھی پوری دنیا کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دیکھو، جو فقی فریسی تھے وہ اپنی طرف سے بہت باتیں بناتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کام ہو گیا، ہمارا تو دشمن ختم ہو گیا۔ ابلیس بھی بڑا خوش تھا، پر ابلیس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پاک خون بہانے سے، اس کے کفارہ دینے سے کیا ہوگا؟ ساری دنیا نجات پائے گی، ساری دنیا ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا۔ دیکھیں آگے دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند پاک خدا نے جب یہ الفاظ بولا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آپ اس پر غور کریں گے کہ خدا جو ہے کبھی اپنا باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتا، اور کیا خدا نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا؟ نہیں، خدا نے اپنے بیٹے کو چھوڑا نہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر بدی کو نہیں دیکھتی، اور خدا نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے جس کو میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری جہاں کے گناہ اٹھا لیے، اور ان گناہوں سے خدا نے منہ پھیرا۔ ہاللیلویہ۔ آپ دیکھیں آگے دیکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ زمین لرزی، چٹانیں تڑک گئیں، اور پھر کیا ہوا؟ قبریں کھل گئیں۔ ٹھیک ہے، اور قبریں کھل گئیں اور مقدس جو لوگ تھے وہ زندہ ہو کر یروشلم کی طرف گئے، اور انہوں نے لوگوں نے ان کو زندہ دیکھا، اور جو وہاں کے لوگ تھے وہ دیکھ کر انہیں، اور ان سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے بھی دیکھا، اور ہیکل کا پردہ کیا ہوا ہے؟ اس کا بیچ میں سے پھٹ گیا، اور وہ ہیکل کے پردہ پھٹنے سے ہمارے لیے آسمان کے راستے کھلے، کیونکہ ہیکل کا جو پردہ پھٹا بیچ میں سے، اس کا لیے کہ ہماری زندگیوں کے لیے، آسمان کے لیے ہم جا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارا خداوند یسوع المسیح
جو ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھا، اگر وہ کفارہ نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ کہ کبھی ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے تھے۔ آج ہماری زندگیوں میں سوچنے کی بات ہے کہ ہماری جو زندگی ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا ہم خدا کی طرف ہیں؟ کیا ہم خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں، جس نے ہمارے لیے اپنا پاک خون بہایا اور جس نے ہمارے لیے پورے اپنے بدن پر زخم کھائے اور کیا کیا؟ صلیبی موت گوارا کی۔ ہم اپنی زندگیوں میں یہ سوچیں، اور یہ سوچنے والی بات ہے۔ جو وہاں لوگ کھڑے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بھنچال دیکھے، انہوں نے اس سارے ماجرے کو دیکھ کر کہا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں آج ہم اپنی زندگیوں کو بدلی کرنا چاہیں، ہر سال ہم لوگ خدا کا زندہ کلام ایسے سنتے ہیں، ہر روزانہ سنتے ہیں، خدا کے خادم سناتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں کہ ہمارے خدا میں یسوع المسیح نے اپنا پاک خون ہماری خاطر بہایا، اس لیے کہ ہم نجات پائیں۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے سنے بڑی برکت ہو، آمین۔ بے شک خدا کا بندہ یسایہ نبی کہتا ہے، کشاکا ماں دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے، لیکن میں تم سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ آئیں عزیزوں، ہم اپنے سر کو جھکائیں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں اور دعا کریں گے کہ خداوند باقی ماندہ عبادت کے حصے کو اسی طرح سنبھالے رکھے۔ اس دعا میں بھائی سونو ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا، مہان زندے خداوند، سرشکتیمان پرمیشور، لشکروں کے خداوند کو کرائسی کو بتانے والوں کو خوشی اس وقت کے لیے میرے پرمیشور ہمیں اکٹھا کیا خداوند آج کے دن کے لیے میرے پربھو، تو ہماری خاطر زمین پہ اپنا قیمتی لوگ بہایا میرے پرمیشور، تاکہ ہم آزاد ہو جائے میرے پرمیشور۔ پربھو یسوع مسیح تو نے اپنا خون بہا کے ہمیں خریدا ہے خداوند، تیرے شکر گزار ہیں میرے پرمیشور۔ پربھو یسوع مسیح جی شکر کرتے ہیں پربھو جی جو سما بیت گیا، پربھو جی جو آنے والا سما ہے، جتنے بھائی کلمہ خداوند جو تیرے منہ کی باتیں بتانے والے خداوند، پوتر آتما جی ان کی مدد اور بڑی سہایتا کیجیے پربھو جی، دیا کیجیے، کرپا کیجیے پربھو، میری چھوٹی دعا سنو قبول فرمائیے۔ ساری پرارتھنا پربھو یسوع مسیح جو آپ کے زندہ پوتر اور سامرتھ، آمین۔ اسی طرح ہم گیت کا اگلا کورس گائیں گے۔ تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کول جائیے، تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کول جائیے، توبہ کر کے گناہ تو لگن پار کنارے، توبہ کر کے گناہ تو لگن پار کنارے، کلواری دے سہارے پاپی بچ لے سارے۔ ہلیلویا۔ پانچواں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ، یوحنا 19 باب اس کی 28 آیت۔ میں پیاسا ہوں۔ میں پانچویں کلمے کے لیے بھائی شہزاد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور پانچواں کلمہ پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تعلیم۔ مسیح میں سب کو سلام۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج مجھے موقع دیا، اور پاسٹر فہد صاحب کا، پاسٹر یاسر صاحب کا اور اپنے استاد محترم پاسٹر بلویر صاحب کا، کہ ان کے وسیلہ سے آج خداوند نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سب کے سامنے پانچویں کلمے کو بیان کر سکوں۔ پانچواں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ، میں پیاسا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 28 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نشستہ پورا ہو،
तो कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह कामल इंसान और कामल खुदा हैं। ये लफ्ज़ जब हम पढ़ते हैं तो यीशु की तकलीफ़, उसके दुख को हम समझ सकते हैं। वो इंसान होते हुए किस कदर तकलीफ़ में थे। हमारे ऊपर आज जब हम छोटी छोटी मुसीबतें या दुख या परेशानी आती है तो हम लोग जादूगरी, फालगिरी, बुत परस्ती और तरह तरह की जुनाकारियों में जाते हैं। लेकिन देखें अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को इतना दुख सहने के बावजूद उन्होंने हमारे और आपकी खातिर अपनी जान सलीब पर दी, और उन्होंने उस सिरके को नहीं पिया, उस पानी को नहीं पिया, और अपनी जान सलीब पर दे के हम सब के गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर दे के हमें निजात दी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उस मौत को याद रखें और अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के उस पाक कलाम को याद रखते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और सारी इज़्ज़त, सारा जलाल खुदावंद के नाम को दें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आपकी बरकत हो, खुदावंद आपका शुक्र हो। आमीन। यीशु मसीह जब सामरी औरत के पास कुएं में थे तो यीशु मसीह ने उस औरत से कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह को हम सब की प्यास है। वो चाहता है कि वो हम सब उस ज़िंदगी के चश्मे के पास आएँ, क्योंकि यीशु मसीह ने जब उस औरत से कहा अगर तू जानती तो मैं तुझे वो पानी देता को ज़िंदगी भर तुझे यहाँ कुएं पर आने की ज़रूरत नहीं। यीशु के पास ज़िंदगी का पानी है और हम ये ज़िंदगी का पानी शायरबानी में लेते हैं जब उसने पेश किया अपना बदन और खून। इसी तरह हम कोर्स का अगला हिस्सा, गीत का अगला कोर्स गाएंगे। करिए देता भीख सानू, वड्डा हौसला करिए जाना रुड़ दिया ताई पढ़ के लाए किनारे, जाना रुड़ दिया ताई पढ़ के लाए किनारे, गलबारी दे सहारे पापी बच गए सारे। हालेलुया। छठा कलमा फतामंदी का कलमा, यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मैं छठा कलमा के लिए भाई यासर को दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदा का कलाम पेश करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम कलमे का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ इन 7 कलमों पर गौर कीजिए। ये एक सीक्वेंस में कहे गए, ये सीक्वेंस में गए। खुदावंद यीशु मसीह पूरी होश में थे। बाज़ लोग समझते हैं ये 7 कलमे जो हैं, ये 7 बातें जो हैं ये मदहोशी की हालत में कही गई या इसका कोई सीक्वेंस नहीं था। ये 7 कलमे जो है बड़े सीक्वेंस से, मिसाल के तौर पर खुदावंद ने इंसान को पैदा किया बाग़े अदन में और उससे गुनाह सरजर्द हुआ और गुनाह के बायस जो है मौत। खुदावंद ने पहला कलमा माफ़ी का कहा। इसी तरह हम सीक्वेंस में देखें तो बहुत लंबी तफसीर है इन कलमों की,
जिन्हें खुदा यीशु मसीह ने आहिस्ता आहिस्ता बयान किया। और जब हम छठे कलमे की तरफ बढ़ते हैं जिसमें वो कहता है 2 लफ्ज़ में तमाम हुआ, तमाम हुआ। गौर कीजिए, यूनानी ज़ुबान में इस कलमे के जो मतलब है उसे बयान किया गया है। ये लफ्ज़ जो है तमाम हुआ, इसका मतलब पूरा पूरा किया जाना, फतहमंदी, कफ़ारा, निजात। इस कलमे यानी कि तमाम हुए में इस सारी बातों को हम देखते हैं कि छोटे कलमे में खुदा यीशु मसीह तमाम हुआ कहते हैं और सर झुकाकर जान देते हैं। गौर कीजिए, छठे कलमे में अगर हम पैदाइश की किताब पे गौर कीजिए तो छठे दिन जो है खुदा ताला ने पूरी ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, इंसान को बनाया और अपने काम को क्या किया, तमाम किया। और 7वें दिन जो है आराम किया। और छठे कलमे भी हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह पूरे मिशन को जो है वो पूरा करते हैं और 7वें कलमे की बढ़ती तरफ जो है वो अब्दी आराम की तरफ जो है अपना सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। छठा कलमा गौर कीजिए, ये बड़ा खूबसूरत कलमा है। तमाम हुआ, बाग़ अदन में जो काम, जो गुनाह इंसान से सरजद हुआ, उस गुनाह के बाइस इंसान जो है वो बरहन्ना हुआ, नंगा हुआ, शर्मिंदा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उस गुनाह की दलदल में वो दस्ता चला गया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कई कौमें जो है इस गुनाह के बाइस जो है आग और गंधक की शिकार हुई। जब इंसान ने देखा मैं नंगा हूँ तो पत्तों से अपनी शर्मिंदगी को, बरहनी को ढांपने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी अपने इस गुनाह को जो है वो छुपा नहीं पाया। और फिर कलाम मुक़द्दस पे गौर करें, पुराने अहदनामे में तो कुछ अहकाम जो है वो इंसान को दिए गए। एक मुक़द्दस खैमा जिसके पहले मकाम पे जो है हम देखते हैं मेज़ और रोटियां चिरागदान हुआ करते थे। वहाँ काइन हर वक्त आया जाया करता और कुर्बानी दिया करता। और फिर उससे आगे एक पाक तरीन मकाम हुआ करता था। उस पाक तरीन मकाम में काइन साल में एक बार जाया करता, लेकिन उसमें जाने से पहले कुछ शराइत थी। 2 बर्रों को लिया जाता और फिर चिट्ठियाँ डाली जाती। एक बर्रा जो खुदावन के नाम से निकलता, उस बर्रे को ज़बा किया जाता और काहिन उस खून को लेता और उस खून को जाकर पाक तरीन मकाम में पेश करता। अरे गौर कीजिए, इस कलमे पर इस काहिन ने ना कोई बकरों का ना कोई बछड़ों का बल्कि अपना खून जाकर लेकर उस पाक तरीन मकाम पे पेश किया ताकि इंसान के लिए अब्दी खुलासी हासिल हो। ये बर्रा, बेऐब बर्रा जो सलीब से पुकार कर कहता है तमाम हुआ, तमाम हुआ। और वो गुनाहगार शख्स के लिए वो ये पुकारता है तमाम हुआ, चाहे तेरे गुनाह कितने ही बुरे क्यों ना हो, चाहे तू ज़नाकार क्यों ना हो, गुनाह में लगा क्यों ना हो, वो तेरे गुनाहों को अपने खून के वसीले से धोता है और कहता है तमाम हुआ। आज कलवरी से ये पुकार है। अपनी ज़िंदगी पे गौर कर, ये तेरा काहिन जिसने तेरे लिए फिद्या दे दिया है। रोमियो में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। तो फिर इस काहिन ने अपने खून को देकर तुझे खून से खरीद लिया है और कहा है तमाम हुआ। आज हर शख्स जो यहाँ मौजूद है गौर करे, अपनी ज़िंदगी पे गौर करे और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पे इस पुकार पे गौर करे। वो कहता है तमाम हुआ। हर वो शख्स के लिए, हर वो फर्द के लिए जो आज भी गुनाह में दसा हुआ है, जो आज भी गुनाह में लदा हुआ है, वो तेरे लिए पैगाम देता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तमाम हुआ, तमाम हुआ, तमाम हुआ। आ मैं बाहें पसारे तेरे सामने खड़ा हूँ, आ मुझे गले लगा, मैं तेरे गुनाहों को बर्फ की माने जो है सफ़ेद कर दूंगा। वो पुकार कर कहता है तमाम हुआ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आमीन। बेशक ये फतहमंदी का
कलमा है, खुदा ने हम सबको गुनाहों से फ़तह कर दिया। उसने शैतान के कामों से फ़तह हासिल कर ली। जो शैतान मंसूबे बना रहा था कि ये निजात का जो प्रोसीजर है ये मुकम्मल ना हो, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ये निजात का प्रोसीजर मुकम्मल किया और हम सबको निजात दे दी। हालेलुया। इसी तरह हम कोर्स गीत का अगले कोर्स की तरफ जाएंगे। कलवरी दे सहारे पापी बच गए सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच गए सारे, ओते सूली ते चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, ओते सूली ते चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, मुल साड़ा तू भरिया देखे खून प्यारे, मुल साड़ा तू भरिया के खून प्यारे, कलवरी दे सहारे पापी। हालेलुया। सातवां कलमा, दोबारा मिलाद का कलमा, लूका 23 बाब उसकी 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। मैं पास्टर फाद को दावत दूंगा कि वो सातवां कलमा पेश करें। हालेलुया। थक तो नीचे गए? हालेलुया, हालेलुया। आए हम सातवें कलमे पे गौर करें। लूका 23 बाब भाई ने जो आयत पढ़ी उससे चंद एक और आयत उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर के करीब तक, मतलब 12 बजे तो लेकर दोपहर 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही। इन वर्सेस के सीक्वेंस को गौर से पढ़िएगा, इस सारे सीक्वेंस को गौर से देखिएगा। 12 बजे से लेके 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा, सूरज की रोशनी जाती रही। अगला काम क्या है? मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। अगली आयत लिखिए, ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अब जब इन 7 सलीबी कलमात को अपने सामने रखते हैं, पहले कलमे का आगाज़ भी आए बाप और फिर आखिरी कलमे का आगाज़ भी आए बाप। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे हमें मुसलसल दुआया हालत में नज़र आ रहे हैं और ये अंदाज़ खुदावंद यीशु मसीह ने दिखाकर हमारे सामने एक खूबसूरत नमूना पेश किया। हालात मुखालिफ हैं, लोग मुखालिफ हैं, सूरत हाल मुखालिफ है, कोई हक में नहीं, तकलीफ़ है, दर्द है, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के साथ मुसलसल राबते में है, मुसलसल कनेक्शन में है। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक नमूना पेश कर दिया। आपके हालात, आपकी सूरत हाल, कंडीशन, माहौल, ये बेशक आपके मुखालिफ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मुसलसल आसमानी बाप से राबता है, अरे फतह से बढ़ के गलबा पाओगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल आसमानी बाप के साथ कनेक्शन में है, राबते में है। अगली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। क्यों? व्हाट इज द रीजन? बगैर अंधेरे के काम नहीं सी हो सकता। लियाकत भाई, हो सकता था। देन व्हाट इज द रीजन? हैकल में ये ईद का मौका है, ईद फसा चल रही है, हैकल में कुर्बानियां हो रही हैं। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। हैकल में जो कुर्बानियां हो रही थी वो इस कुर्बानी की एक तस्वीर थी, एक अक्स था। अब चूंकि असली आ गया, अब उन आर्जी कुर्बानियों को उनकी ज़रूरत नहीं रही।
लिखा हुआ 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अंधेरा छा गया तो हनेरे च मजहब तक कुर्बानियां नहीं हो सकती। वहां पे कुर्बानियां 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रुक गई, क्योंकि कलवरी के पहाड़ पर खुदा का बेबर्रा कुर्बान हो रहा है। अब और किसी कुर्बानी की हाजत नहीं, अब और किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं। कहना दे खंजर उन्हों दी छुरियां रुक गई, अंधेरा छा गया, क्योंकि खुदा का बेबर्रा कुर्बान हो रहा है। हालेलुया। लिखा हुआ है कल का पर्दा फट गया। 7वां कलमा मिलाप का कलमा लियाकत भाई, खुदावंद यीशु मसीह ने तब तक ये लफ्ज नहीं बोले जब तक हैकल का पर्दा नहीं फटा। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी और लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये पर्दा नीचे से ऊपर नहीं फटा, ये पर्दा ऊपर से नीचे को फटा। अगर ये नीचे से ऊपर को फटता तो हम शायद कहते हैं ये किसी इंसान का काम है, लेकिन चूंकि ये पर्दा ऊपर से नीचे को फटा इसलिए किसी इंसान का नहीं। अरे इस काम में इलाही जात का हाथ है, इसलिए पर्दा ऊपर से नीचे तक फट रहा है। और जब तक ये पर्दा ऊपर से नीचे तक नहीं फटा तब तक जनाब मसीह के लबों से ये अल्फाज न निकले, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये मिलाप का कलमा है। और जब पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा तो ये इस बात का निशान था कि अब पाक तरीन मकाम खुदावंद की हजूरी में आने के लिए सिर्फ काहन नहीं बल्कि हर एक जात जो है वो खुदावंद की हजूरी में आ सकती है। तो साबित यह हुआ कि यह मिलाप का कलमा सिर्फ जनाब मसीह का आसमानी बाप से मिलाप नहीं बल्कि उसकी जात के साथ साथ मेरा और आपका भी आसमानी बाप के साथ मिलाप हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे खुदावंद यीशु मसीह ने जब तक ये पर्दा ऊपर से नीचे तक ना फटा उसके लबे मुबारक से ये अल्फाज ना निकले, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपना ये मुकम्मल भरोसा कामिल इत्काद का एक निशान है। खुदावंद के हाथों में अपनी रूह सौंप देना, अपना आप खुदावंद के आगे उंडेल देना, उसकी हजूरी में अपने आप को सौंप देना, खुदावंद पर तवक्कल, खुदावंद पर भरोसे का एक निशान। मतलब अब जनाब मसीह अपने आप को अपने बाप की हजूरी में पेश कर रहा है। खुदावंद की हजूरी, प्रेजेंस ऑफ गॉड। अरे जहां खुदावंद की हजूरी होती है वहां इत्मीनान होता है, वहां पर तसल्ली होती है। हालात मुखालिफ है, खिलाफत चल रही है, लोग मुखालिफ है, सरकार मुखालिफ है, लेकिन जनाब मसीह अपने बाप की हजूरी में है। अरे वो इत्मीनान में है। जहां पर खुदावंद की हजूरी होती है वहां पर हालात सूरत हाल कैसी भी क्यों ना हो, अरे जाने तसल्ली पाती है, आराम में दाखिल होती है। अरे कैसी होती है ये खुदावंद की हजूरी। अरे जाओ जाके पूछो सदरक मिशक अबदनगो से, अरे जलती आग की भट्टी में थे उसके बावजूद खुदावंद की हजूरी में थे। अरे कहीं जाके पूछे दानियल नबी से जो अगरचे शेरों की मांद में था लेकिन खुदावंद के इत्मीनान में था, ये खुदावंद की हजूरी। अरे कोई पूछे दाऊद नबी से जो बड़ा पुकार कर बड़ी दलेरी से कहता है बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदावंद की हजूरी, अरे खुदावंद की हजूरी तसल्ली देती है, इत्मीनान बख्श देती है। जनाब मसीह ने एक खूबसूरत नमूना पेश किया। खुदावंद कहता मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कलमा एक बिदती फिरके की तालीम को रद्द करता है। यहां एक बिदती फिरका था जिनका मानना यह था कि यीशु मसीह के अंदर रूह नहीं थी। वो कादिर था, वो कुदरत वाला था, लेकिन वो अपने अंदर रूह नहीं रखता था। और ये 7वां कलमा उनकी इस तालीम को रद्द करता जब जनाब मसीह कहते हैं बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसका मतलब कि वो कामिल इंसान था जो मेरे और आपकी तरह अपने वजूद में रूह भी रखता था। हालेलुया। एक बड़ा अजीब काम हुआ। सूबेदार खलोता थे,
लिखा हुआ सूबेदार ये माजरा देख के पुकार उठा, बेशक ये रास्तबाज शख्स था। ये सूबेदार के लिए ये शख्स बाकी लोगों से मुनफरद है, ये अजीब है। अरे आज तक कभी किसी ने ऐसे कलाम नहीं किया, बात नहीं की जिस तरह से ये तकलीफ के बावजूद, कर्ब के बावजूद कलाम करता है। इस सूबेदार ने यरूशलेम के बाहर फाटक पर कई सलीबों पर कई मुजरमों को लटकाया होगा, लेकिन आज की ये सलीब, ये ऐसी सलीब थी जो उस सूबेदार के दिल में घर कर गई। अरे ये सलीब उन बाकी सलीबों से मुनफरिद, उन बाकी सलीबों से जुदा। आज जब सूबेदार सलीब पर लटके इस शख्स को देखता है तो इस सूबेदार के लबों से वो बातें निकली जो आज तक इस सूबेदार ने कभी किसी के हक में न कही। वो कहता है यकीनन ये शख्स रास्तबाज था, क्योंकि आज तक इस सूबेदार ने लोगों की जानें निकलते देखी। ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट वन, जिसकी जान निकली नहीं, बल्कि जिसने आप अपनी मर्जी से अपनी जान आसमानी बाप के हाथों में सौंप दी, क्योंकि इसका दावा था इब्ने आदम को जान लेने और फिर जान देने का भी इख्तियार है। हालेलुया। अरे जिंदगियां बदल जाती है ऐसे लोगों को देख के जिनका वजूद आसमानी बाप के कंट्रोल में होता है, जिन्होंने अपना आप आसमानी बाप के हाथों में सौंपा होता है। अरे दुनिया उनसे मुतासर हो जाती है। अरे दुनिया उनके लाइफ स्टाइल, उनके तौर तरीके, उनकी बातों को देख के मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकती। ये सूबेदार आज तक सलीब पर किसी लटके शख्स से मुतासर ना हुआ, लेकिन जब ये जनाब मसीह पे निगाह करता है इसका दिल बदल गया, इसकी सोच बदल गई। जनाब मसीह ने खूबसूरत पैटर्न, एक खूबसूरत नमूना पेश किया। ये मैसेज है आज गुड फ्राइडे का आपके लिए और मेरे लिए। दिस इज द मैसेज। अरे हर वो शख्स जो अपने आप को हर तरह के हालात में अपने बाप के हाथों में सौंपता है, अपना आप उसके कंट्रोल में देता है, दुनिया उससे मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकती। गैर कौमों में शहादत कायम हो जाती है। लोग की कांड पीछे याद कर देने, अरे तुम क्या बात करते हो, एक मसीही को तो मैं भी जानता हूं। अरे वो ऐसे नहीं है, बंदे नहीं रहते, गवाहियां पीछे रह जाती ने। अरे जिंदगियां मुतासर हो जाती हैं। आज मेरा और आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आज मेरा और आपका तर्ज जिंदगी कैसा है। अरे गुड फ्राइडे का मैसेज ये है, हम भी पुकार कर कहें हालात सूरत हाल कैसी भी क्यों ना हो, मगर ऐ खुदावंद मैं अपना आप आज तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम के सबब से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।